السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سپاہی سانجار کو پہاڑی سے گرتے ہوئے دیکھا اور ساتھ میں تورنا خاتون بھی اپنے پھول کو گرا دیتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ ان کی محبت مر چکی ہے۔ اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات کمانڈر یورگوس سے ہوتی ہے، جو کہ سانجار کو پہاڑی سے گرانے کے بعد کہتا ہے، آسمان میں تمہاری روح کو سکون ملے میرے بھائی، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔ کمانڈر یورگوس مسکراتا ہے اور واپس موڑتا ہے، جبکہ سپاہی زینون یورگوس کی تلوار اٹھاتا ہے۔ دوسری جانب یورگوس سانجار کی تلوار اٹھا کر کہتا ہے، سانجار اب مر گیا ہے، لیکن ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی۔ زینون پھر بہرام کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے یورگوس، اسے مار ڈالیں کیا؟ یورگوس کہتا ہے، نہیں، اس کی لاش ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اسے گھوڑے پر سوار کرو اور جنگل میں پھینک دو۔ پھر دوستو زینون اپنا سر ہلاتا ہے اور اپنے دو سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، جو کہ بہرام کو فوراً اٹھا کر یہاں سے لے جاتے ہیں، جبکہ یورگوس پھر کہتا ہے، سلجوق کے سپاہی سانجار اور مقدس صندوق کو تلاش کر رہے ہوں گے، ہمارے آدمی راستے میں گھات لگائے بیٹھے ہوں گے اور زمین پر تمام نشانات کو مٹا دیں گے۔ ادھر دوسری جانب بازنطینی سپاہی بہرام کو گھوڑے پر سوار کر دیتے ہیں اور ایک سپاہی اسے لے کر یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یورگوس کہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس تلوار کا کیا کرنا ہے۔ زینون اپنا سر ہلاتا ہے اور یورگوس کو اس کی تلوار تھماتا ہے اور یورگوس بدلے میں سانجار کی تلوار زینون کو دے دیتا ہے۔ پھر دوستو سارے سپاہی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کمانڈر یورگوس مقدس امانتوں کے پاس آتا ہے اور انہیں لے کر یہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سانجار کے خصوصی سپاہی ملک تاپار کے ہمراہ دکھائے جاتے ہیں، جو کہ سانجار کی تلاش میں بارش کے دوران نشانات کا تعاقب کرتے جاتے ہیں۔ ارسلان تاش اس دوران کہتا ہے، ملک حضرت وہ اتنے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ ملک تاپار کہتا ہے، ارسلان تاش ہم انہیں کافی دیر سے تلاش نہیں کر سکے، کچھ تو غلط ہے۔ اتنے میں دوستو کچھ آوازیں آتی ہیں اور سارے سپاہی فوراً چوکندہ ہو جاتے ہیں۔ بالابن اپنا تیر کمان سامنے کی طرف کر لیتا ہے، لیکن سامنے سے مزید سلجوق فوجیوں کا ایک دستہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور انہیں دیکھ کر سب ہی خصوصی سپاہی پرسکون ہو جاتے ہیں اور اپنے ہتھیار نیچے کر لیتے ہیں۔ پھر دوستو کمانڈر کہتا ہے، ملک حضرت ہم نے دارالحجرہ میں تمام باطنیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ ملک تاپار کہتے ہیں، جلدی سے جاؤ اور ہمارے سلطان کو آگاہ کرو کہ ہم نے انہیں دارالحجرہ میں تباہ کر دیا ہے، لیکن مقدس امانتیں اور سانجار غائب ہے۔ سلطان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوستو سلجوق کمانڈر فوراً ملک تاپار کے حکم پر یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سپاہی بوسکوش کہتا ہے، انشاءاللہ ہم سانجار اور مقدس امانتوں کو بھی تلاش کر لیں گے۔ ملک تاپار کہتے ہیں، یقیناً جلد ہی مقدس امانتیں ہمارے پاس ہوں گی، لیکن ابھی ہمیں سانجار کو زندہ تلاش کرنا ہوگا۔ چلو سپاہیوں، پھر دوستو سارے سپاہی سانجار کی تلاش میں مزید آگے کی طرف چل دیتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب زندان دکھایا جاتا ہے، جہاں سلجوق فوجی ایلچن خاتون کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں اور ایلچن خاتون یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ حاجب کمچ سے کہتے ہیں، ان غداروں کو لے جاؤ۔ سلجوق سپاہی پھر فوراً ایلچن خاتون کے سارے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ پھر خود ایلچن خاتون سے کہتے ہیں، میں نے آپ کی بات پر اعتماد کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بھائیوں کا خون بہانا نہیں چاہتی ہیں، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں غدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خیانت اور غداری سے بھی بدتر ہے۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں، ہمارا خاندان اور قبیلہ دونوں ہی برباد ہو چکے ہیں، بھائی جان کو لے کر
जाने का मेरा मकसद इनकी जान बचाना था। मैं इनको खून रेजी से रोकना चाहती थी। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, लिहाजा आपका मकसद मेरी नजरों में उभर कर अपने भाई किलज अरसलान को अगवा करना था, लेकिन आप नहीं जानती कि मैं इस खून रेजी को रोकने के लिए क्या कर रहा हूँ। हमारे दरमियान फितना पैदा करने वाले कोई गद्दार तो नहीं है, यही देखने के लिए मैं सब्र कर रहा था। अब मेरा बेटा तापार और मेरे सिपाही इस मसले को जाहिर करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और आपने हमारे इन मकासद और इन बहादुरों की काविशों दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। मैंने आपको और आपके भाई को यहाँ रखा ताकि आप बागियों में फंस कर कुछ गलत फैसला ना कर दें। एल्चन खातून ये सुनकर बड़ी शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं ऐसा कुछ ना करती मेरे सुल्तान। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, अगर आप मुझ पर यकीन करती जैसे मैंने आप पर यकीन किया था और जब वक्त आता तो आपको भी मालूम हो जाता, लेकिन मुझ पर एतमाद करने की बजाय आपने गद्दारी का इंतखाब किया। एल्चन खातून कहती हैं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरी गर्दन एक बाल से भी पतली है, मेरा सर तस्लीम खम है। सुल्तान मलक शाह अपने बाबा की निशानी और एल्चन खातून की दी हुई अंगूठी अपने अंगूठे से उतारते हैं और कहते हैं, अब से हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है एल्चन खातून। सुल्तान मलक शाह फिर अंगूठी आगे करते हैं और कहते हैं, अब से आप आजाद हैं। जबकि एल्चन खातून ये देखकर बड़ी परेशान होती हैं और अंगूठी सुल्तान मलक शाह से लेती हैं। फिर सुल्तान मलक शाह कहते हैं, आप भी कोतलामश के बागियों के साथ शामिल होकर मेरे खिलाफ लड़ सकती हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मेरी तलवार अब म्यान से बाहर आ चुकी है। एल्चन खातून सब कुछ खामोशी से सुनती जाती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह अपने वफद के हमरा यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही बोसकोश और मलक तापार का खसूसी दस्ता दिखाया जाता है। बोसकोश सिपाही इस दौरान कहता है, हम बहुत दूर आ चुके हैं मलक हजरत और किसी भी जगह कोई निशान नहीं मिला, ये अच्छी इलामत नहीं है। मलक तापार कहता है, वो जानते थे कि हम सांजार को तलाश करने आएंगे, इसीलिए उन्होंने निशानात को साफ कर दिया है और अगर उनका यही ख्याल था कि हम इसी तरफ से आएंगे तो हम किसी जाल में फंस चुके हैं। बहादुरो, होशियार रहो। सारे खसूसी सिपाही फौरन अपने हथियार म्यानों से बाहर निकाल लेते हैं और फिर अचानक सामने से बाजंतीनी फौज नमूदार होती है, जो कि डाकुओं के भेस में मलक तापार पर हमला आवर होते हैं और मलक तापार को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। दोस्तों इस दौरान हमला आवरों का कमांडर अपना निकाब उतारता है और सांजार की तलवार आगे करके कहता है, क्या तुम इस तलवार के मालिक को तलाश कर रहे हो? बाजंतीनी सिपाही तलवार आगे फेंक देता है और सिपाही बोसकोश फौरन इसे पहचान कर कहता है, ये तो सांजार की तलवार है। सांजार मर जाएगा लेकिन अपनी तलवार कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सारे सिपाही बड़े गमगीन हो जाते हैं, जबकि दुश्मन कमांडर कहता है, तुमने सही कहा है, वो मर गया है। फिर दोस्तों इंतकाम की आग में सारे सिपाही शेरों की तरह आगे बढ़ते हैं और गाजर मूली की तरह दुश्मन बाजंतीनी सिपाहियों को काटते जाते हैं। मलक तापार, बोसकोश, अरसलान ताश बड़ी बहादुरी से दुश्मनों पर कारी ज़रब लगाते हैं, जबकि बालाबान के तीर और आइदोदो की तलवार दुश्मनों के लिए वबाले जान बन जाती है। लेकिन दोस्तों इसी लड़ाई में लड़ते हुए सिपाही अयाज की टांग जख्मी हो जाती है, लेकिन अयाज फिर भी दुश्मन का मुकाबला करता है और एक सिपाही को जहन्नम वासल करता है। लेकिन दोस्तों दूसरा बाजंतीनी सिपाही फौरन अयाज को गिराता है और इस पर तलवार चलाने ही लगता है, लेकिन दूर लड़ने वाले अरसलान ताश की नजर बर वक्त अयाज
पर पड़ जाती है और अरसलान ताश अपने हाथ में मौजूद नेज़े को दुश्मन की तरफ फेंकता है और ये सिपाही इस नेज़े से हलाक हो जाता है और अयाज की जान बच जाती है। इतने में दोस्तों मलक तापार दुश्मन सिपाहियों के कमांडर पर कारी ज़रब लगाते हैं, जिसकी वजह से वो मफलूज हो जाता है और इतने में सारे दुश्मन सिपाही भी मारे जाते हैं। इधर मलक तापार दुश्मन कमांडर की गर्दन पर तलवार रख कर कहते हैं, सांजार कहाँ है, मुकद्दस इमानतें कहाँ हैं? सिपाही कहता है, मैं मुकद्दस इमानतों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सांजार के बारे में गिद्धों से पूछो, वो इसके मुर्दा जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहे होंगे। ये सुनकर अरसलान ताश फौरन इसका गरेबान पकड़ता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतने में सिपाही अयाज फौरन अरसलान ताश को पकड़कर पीछे धकेलता है, जबकि दुश्मन सिपाही कहता है, हमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मलक तापार गुस्से में कहता है, तुम सांजार के साथ कहाँ लड़े थे, मुझे बताओ। सिपाही कहता है, जब तुम्हें इसकी लाश मिलेगी फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों सारे सिपाही ये सुनकर गुस्से से फटे जाते हैं, जबकि मलक तापार कहता है, फिर तुम्हें अपनी जबान की जरूरत नहीं है। मलक तापार पहले इस बाजंतीनी सिपाही की जबान काटता है और ये चिल्लाने लगता है, जबकि फिर मलक तापार फौरन अपनी तलवार को लहराकर इसकी गर्दन भी काट देता है और चिल्लाते हुए इस बाजंतीनी सिपाही की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों हसूसी सिपाहियों का हौसला पस्त होता देखकर मलक तापार कहता है, अपने आप को संभालो बहादुरों, हम अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हमें सांजार की मौत का अभी नहीं पता है और जब तक हम उसे तलाश ना कर लें हम नहीं रुकेंगे। ये कुत्ते तो हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इनके जाल में नहीं फंसेंगे। फिर मलक तापार अरसलान ताश की तलवार उठाते हैं और कहते हैं, अगर यहाँ सांजार होता तो क्या वो भी हार मानता? अरसलान ताश मलक तापार से अपनी तलवार लेता है और मलक तापार कहते हैं, हम भी नहीं हारेंगे, हम सांजार की मौत का यकीन नहीं करेंगे और जब तक हम उसे तलाश ना कर लें हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर दोस्तों मलिक तापार का ध्यान अयाज के जख्म पर पड़ता है और मलक तापार कहता है, अयाज तुम इस जख्म के साथ आगे नहीं बढ़ सकोगे, सिपाही तुम्हें कबीले वापस ले जाएंगे। सिपाही अयाज मलक तापार के हुक्म पर सर खम करता है और बाकी सिपाही फौरन मलक तापार के हमरा सांजार की तलाश में यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी सरबराह अब्दुल मालिक दिखाया जाता है, जो कि बड़ी परेशानी से बहराम को कहता है, अजीम बहराम तुम कैसे मुकद्दस इमानतों को खो सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए था मगर मुकद्दस इमानतों को नहीं छोड़ना चाहिए था। हसन सब्बाह भी इस दौरान इनके पास मौजूद होता है, जबकि अब्दुल मालिक मजीद कहता है, हम उन इमानतों की बदौलत से अपना झंडा बुलंद करने जा रहे थे, हम एक सच्चे अकीदे को इस मकाम पर लाने जा रहे थे जिसका ये हकदार है। तुमने कई बार उनका इम्तिहान लिया लेकिन फिर भी तुम कैसे नहीं समझ सके कि वो जासूस हैं। बहराम कहता है, आपको मेरे लिए जो भी सजा मुनासिब लगे मुझे वो कबूल है, लेकिन मुझे हमारा इंतकाम लेने का मौका दे। अब्दुल मालिक बहराम के पास आता है और कहता है, अगर तुम्हारी गर्दन तुम्हारे जिस्म से अलग कर दी जाए तो ये मुनासिब होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी की गई गलतियों की अहमियत का एहसास करना होगा। अब्दुल मालिक यहाँ से कुछ लेने चला जाता है, जबकि रुस्तम फिदाई और हसन सब्बाह बहराम के दोनों बाजुओं को एक एक करके पकड़ लेते हैं और ये देखकर बहराम बड़ा परेशान हो जाता है। जबकि अब्दुल मालिक सुलगती हुई आग से एक खंजर निकालता है जो कि जलकर सुर्ख हो चुका होता है और फिर अब्दुल मालिक कहता है, तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें जो जासूसों को देखने में नाकाम हो गई हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। बहराम ये देखकर खौफ से चलाने लगता है, जबकि अब्दुल मालिक फौरन बहराम की एक आंख पर सुलगता हुआ खंजर रख देता है और बहराम चीखें मारता है। इतने में रुस्तम और हसन सब्बाह भी बहराम को आजाद कर देते हैं, जबकि बहराम की आंख
लगता हुआ हंजर लगने की वजह से जाया हो जाती है। फिर दोस्तों अब्दुल मालिक जोर से हंजर को नीचे फेंकता है और कहता है, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया है, अब से मेरी नजरों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहराम दर्द से कराहता हुआ सर खम करता है और अपने घोड़े की तरफ चल पड़ता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है, रुस्तम हमारे फिदाइयों को अपने साथ ले जाओ और इस जगह जाओ जहाँ इसने संदूक खो दिया था। मुझे सांजार और इमानतें दोनों चाहिए। रुस्तम कहता है, जैसे आपका हुक्म हजरत दाई आला। रुस्तम फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर अब्दुल मालिक हसन सब्बाह से कहता है, तुम फौरन महल जाकर सांजार और मुकद्दस इमानतों के बारे में मालूमात हासिल करो और मुझे आगाह करो। हसन अपना सर खम करता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने घोड़े की रस्सी खोलते हुए हसन की आंखों में इंतकाम की आग जल रही होती है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कोबिल किला दिखाया जाता है, जहाँ जश्न का सा समा होता है और सारे सिपाही झूम रहे होते हैं, खवातीन रक्स कर रही होती हैं और कमांडर आंद्रेयास अपने जाम पीने में मसरूफ होता है। लेकिन कमांडर योरगोस का देहान इस दौरान किसी और ही जगह पर होता है और फिर कमांडर आंद्रेयास एक चम्मच को लेकर अपने टेबल पर मारता है और सब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। और फिर दोस्तों सारे सिपाही और मेहमान खामोश होकर कमांडर आंद्रेयास की जानब मतवज्जा होते हैं, जबकि कमांडर आंद्रेयास कहता है, मुसलमान कभी भी कोवल किले के खिलाफ जाकर मगरिब की तरफ नहीं जा सकते। ये सुनकर सारे मेहमान चिल्लाते हैं, जबकि आंद्रेयास कहता है, कोई भी मुसलमान जो इस सरहद तक आएगा हम इसकी लाश को सांजार की तरह गिद्धों की होराक बना देंगे। सारे सिपाही खुशी से चिल्लाते हैं और आंद्रेयास की बात का इकरार करते हैं, जबकि कमांडर आंद्रेयास मजीद कहता है, मैं अपने गिलास को इस अजीम जंगजू योरगोस के लिए उठाता हूँ, जिंदाबाद योरगोस। फिर दोस्तों हर तरफ योरगोस के नारे लगना शुरू हो जाते हैं और कमांडर आंद्रेयास का देहान इस दौरान परेशान बैठे योरगोस पर होता है, जो कि किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा होता। और ये देखकर आंद्रेयास योरगोस के पास आता है और कहता है, हम संदूक को हासिल करने का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन तुम अपने साथ संदूक नहीं लाए हो। योरगोस कहता है, सल्जूक हर जगह इस संदूक की तलाशी ले रहे होंगे, बेहतर होगा कि संदूक कुछ अरसे के लिए किले ना लाया जाए। कमांडर आंद्रेयास फिर कहता है, तुमने अपने भाई का इंतकाम ले लिया है तो मुझे बताओ कि तुम खुश क्यों नहीं हो। योरगोस कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने दिल में इंतकाम की आग को बुझा दिया है, लेकिन अब एक और आग भड़क उठी है। आंद्रेयास ये सुनकर पागलों की तरह मुस्कुराता है और कहता है, योरगोस ये ना कहना अब कि मुझे प्यार हो गया है। आंद्रेयास फिर दोबारा एक जोरदार कहकहा लगाता है और कहता है, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की, वो कौन से गवर्नर की बेटी है, वो किस बाजंतीनी शाही खानदान की खातून है, बताओ मुझे। योरगोस कहता है, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि वो एक तुर्क लड़की है। आंद्रेयास ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि योरगोस फिर उस वक्त को याद करता है जब इसने पहली मर्तबा अमीर अल्तबर की बेटी तुर्ना खातून को देखा था। आंद्रेयास फिर कहता है, वो अच्छे जंगजू हैं, जबकि योरगोस अपना सर हिलाता है, लेकिन आंद्रेयास परेशानी से कहता है, आहर तुम्हें भी अपने जैसी कोई मिल ही गई है। आंद्रेयास ये कहकर उठता है, लेकिन जाने से पहले वो योरगोस को एक नसीहत करता है और कहता है, योरगोस होशियार रहना, कहीं इस जंग में हारने वालों में शामिल ना हो जाना। दोस्तों योरगोस ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, जबकि कमांडर आंद्रेयास अपने तख्त पर जाकर बैठ जाता है। और फिर दोस्तों अगली सुबह शालमजार में दारुल शिफा दिखाया जाता है, जहाँ तुर्ना खातून तंदूर के पास बैठी दूध गर्म कर रही होती हैं और साथ में सिपाही सांजार की बातें भी याद कर रही होती हैं। जब सांजार ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरी मौत कब और कहाँ आएगी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाने से डरता हूँ। दोस्तों इसी दौरान
आग पर रखा हुआ दूध उबल कर बाहर गिरने लगता है और तुरना खातून फौरन इसे उठाकर आग से बाहर रखती हैं और दूर खड़ी आईगुल हादमा ये देखकर तुरना खातून से कहती हैं, बेगम साहिबा क्या आप ठीक हैं? तुरना खातून कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आईगुल कहती हैं, आप सुबह से किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं, मुझे आपकी फिक्र है, हो सके तो महल वापस चली जाएं और कुछ आराम कर लें। तुरना खातून कहती हैं, नहीं नहीं, मेरा मसरूफ दिमाग मेरे दिल के दर्द को कम करता है, मैं यहाँ ही बेहतर हूँ। इस दौरान आईगुल खातून के हाथ में एक टोकरी भी मौजूद होती है जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियां मौजूद होती हैं और इन्हें देखकर तुरना खातून कहती हैं, ये क्या है? जबकि आईगुल खातून कहती हैं, इन्हें दूर दराज की जमीनों से इकट्ठा किया गया है, ये शिफा के लिए हैं, मगर मैं नहीं जानती कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुरना खातून ये टोकरी लेती हैं और कहती हैं, हम बहुत सी दवाएं तैयार करती हैं, हमारे पास बहुत से जख्मों और तकलीफों का इलाज है, लेकिन टूटे हुए दिलों का कोई इलाज नहीं है, इस जख्म को शिफा बख्शने वाला कोई तबीब नहीं है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ महल की राहदारी में अचानक सफेरिया खातून और तैरकन खातून का आमना सामना हो जाता है। सफेरिया खातून कहती हैं, हमने एल्चन खातून के मामले में तुम्हारा तजजिया सुना है, तुमने हमारे सुल्तान को जाती तौर पर आगाह किया है। तैरकन खातून कहती हैं, मुझे लगता है कि हमारे सुल्तान ने जाती तौर पर मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है, लेकिन आप फिक्र ना करें अम्मी जान, अब से जिन लोगों के पोशीदा इरादे हैं वो सब जाहिर होंगे। इस दौरान तैरकन खातून गैवहर खातून को देखती हैं और कहती हैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तैरकन खातून फिर इजाजत लेती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, जबकि सफेरिया खातून भी गैवहर खातून के हमरा यहाँ से चली जाती हैं। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।